देखकर। ये तबाहनाक सीन है, इस तरह के सीन्स हैं कि रातों को आपको नींद नहीं आएगी और बताया ये जा रहा है कि जो खराब लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको सज़ा देने के लिए इस तरह के टॉर्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे तरीके से कहीं से भी ये बात कोई लीगल नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान का निज़ाम हो या हिंदुस्तान का निज़ाम हो। ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, किसी के भी ह्यूमन राइट्स हों, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, लेकिन उनको भी कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी। तो दिखाया तो ये जा रहा है कि ये सज़ा आतंकवादियों को दी जा रही है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं अभिनव भारत यूट्यूब चैनल। तो है साहब, जली तो है और ऐसी जली है कि धुआं कहाँ कहाँ से उठ रहा है धुरंधर की वजह से। अभी आपने जो क्लिप देखा हमारे आरफा मैडम का, तो इसमें मैडम कह रही है कि ये जो सिंबल्स है पर्टिकुलर कम्युनिटी के, उनके ऊपर ये हमला है। इस फिल्म में अब ये जो आपने वो सीन भी देखा होगा कि वो पैजामे में हाथ डाल के चेक कर रहा है। तो मैडम ये कह रही है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके ऊपर ये हमला है, उनके सिंबल्स के ऊपर ये जो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी से रिलेट करती है फिल्म, तो ये हमला है उनके ऊपर। और मैडम को ये याद नहीं है, जब बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में आती थी पहले, उसमें ब्राह्मण से, अभी आगे आपको एक वीडियो दिखाऊंगा उसमें भी है ब्राह्मण्स के वो ऊपर जो चोटी होती है उनकी शिखा, उसके ऊपर बहुत सारे मतलब वो An entire community is maligned. Name me, since you watched the film, name me one Indian Muslim who has been shown in a bad light in the film. Doesn't matter. Muslim symbols are attacked. How doesn't what it is matter? important is Muslim So are we symbols are saying, attacked. And just a another second, point, are we then somebody who saying is- that the Okay, film another example. Munich, I will which give you showed another the example. Hamas Okay, I'm attack giving you on another Israeli example. athletes, is anti-Muslim? Are we saying Schindler's I'm List giving is you another anti-German? example, Padmaja. I gave you one example. I gave you one example of the private parts of Muslim men, which was But made we to have be a had subject crude of ridicule jokes about all on the kinds big of screen. people. Another point is Do you know there was that a film all the called adversaries Gunda, of this which had a political man party are with a being told to choti, be and his that name Pakistan was हमारा Chutia. दूसरे नंबर का It is दुश्मन है, actually पहले an नंबर के extremely दुश्मन तो भारत में लोग denigrating हैं. reference to Exactly Brahmins the who kind keep of that kind of language that the shikha. BJP and Now, RSS either speak, which people means can say that we India's are under minorities siege in our own and the country, Congress Party or we and can take JNU it and as AMU, some anything cinematic and liberty. everybody and anybody who is an adversary of this political party in power, they are being portrayed in poor light. So these kind of dialogues, ये भारत है, नया भारत है, घर में घुस के मारेगा, all kinds of dialogues. What other really proof do you need to prove that this particular film is just a propaganda for this political party Okay, that's and a for good the point. government? That's a good I do point. not When have this any whole more Naya examples to Bharat give you. narrative, But that's I a good point. Kushal I Mehra. gave you at least 3 solid examples. First of Okay. all, nobody should be allowed to ridicule a particular community, that too in a There is no very ridiculing of political filthy, community. There is sexualized the only way. ridiculing I think is of just terror one groups. scene should I be maintain enough for that the sense of only all to ridicule. वो कैरेक्टर बुरा रहता है, फिर तो किसी हिंदू ने कहा नहीं कि यार ये हमारे जो हमारे जो भी कल्चरल जो कुछ चीज़ें है उसके ऊपर ये हमला हो रहा है फिल्म में। ऐसे तो किसी कोई भी ऑफेंड नहीं हुआ, आपको ऑफेंड होने की ज़रूरत इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन मैडम तो मैडम है, वो तो कहेंगी और उनको एक मतलब कि प्रोपेगेंडा चलाना है, क्योंकि उनके जो बहुत ही प्यारी और दुलारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उनकी जो डार्क रियलिटी है आईएसआई की, उनके खिलाफ ये जो फिल्म आ गई है और पूरा की पूरा मतलब सच जनता के सामने आ गया। इस वजह से मैडम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और ये जो जलन है, इसका ये जो धुआं है, दूर 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 तक दिख रहा है इनका धुआं और बहुत सारा सुकून दिल को पहुँच रहा है हर किसी राष्ट्रवादी को, क्योंकि ये लोग है इस तरह के, इनको देशभक्ति से नफरत है और राष्ट्रवाद इनके अंदर एक एक मतलब सुई की नोक जितना भी नहीं है। और देखिए आगे वाला क्लिप।
धुरंधर नाम की ये फिल्म जिसने पाकिस्तान, उस पे पाकिस्तान की सरकार, उसकी फौज और आईएसआई के जो भारत विरोधी जो कारनामे हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सपोज करती है और दर्शकों में एक तरह की राष्ट्रवाद की भावना जगाती है। लेकिन जब आप थिएटर के अंदर बैठे 2.5 नहीं बल्कि पूरे 3.5 घंटे इस फिल्म को झेलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये फिल्म नहीं, शुद्ध प्रीमियम प्रोपेगेंडा है। अब आप देखेंगे कि आपने ये फिल्म, आप सोचेंगे कि आखिर देखी तो क्यों देखी? तो सुनिए, मैं कभी-कभी मनोरंजन के लिए फिल्में ज़रूर देखती हूँ, लेकिन फिल्मों के रिव्यू लिखना ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। जब तक कि ये फिल्म किसी हमारे सामाजिक किसी परिप्रेक्ष्य में या राजनीति पे असर ना डाले। मैं उन्हीं फिल्मों को अहमियत देती हूँ जो समाज और राजनीति को इम्पैक्ट करती हैं। और ये एक उसी तरह की फिल्म है जिसकी कामयाबी पहले से ही टूटते और बिखरता हुआ जो भारतीय समाज है उसमें एक आखिरी धक्का दे रही है। इस फिल्म में एक नहीं बल्कि मेरी नज़र में इस फिल्म में दर्जनों समस्याएं हैं और इनको अनदेखा करना आज की तारीख में बेहद खतरनाक होगा। हम किसी के पास ये लग्जरी नहीं है क्योंकि हमारा समाज जिस मुहाने पे खड़ा हुआ है वो बेहद खतरनाक मुहाना है। इस फिल्म की कई परतें आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपके लिए खोलने वाली हूं। 3.5 घंटे की ये तकलीफ और अजियत मैंने सही है ताकि आपको ये ना सहना पड़े और आपको अपनी ऊर्जा और अपना वक्त ना लगाना पड़े। इसके लिए मैंने आपके लिए कुर्बानी दी। आइए शुरुआत करते हैं कि इस फिल्म का असली जहर क्या है। क्यों मैं ये कह रही हूं कि बाजार में जहर का एक नया इंजेक्शन आया है और भारतीय समाज में ये छिपा नहीं बल्कि बहुत खुला हुआ ये प्रोपेगेंडा है। कई स्तरों पर इसका संदेश इतना खतरनाक है कि हजारों घंटे का जो ब्रॉडकास्ट है टेलीविजन चैनल का, न्यूज का, वो अपने आप में इतना खतरा नहीं लाता जितना कि ये एक फिल्म इस खतरे को अंजाम दे रही है। इस फिल्म को देखने के बाद एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक को, एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर मेरा ये फर्ज है कि मैं आपसे इसको रूबरू कराऊं कि इस फिल्म को देखने जाने का फैसला आप इस रिव्यू के आधार पर ही कीजिए। और सबसे बड़ी बात मेरी आपको सलाह ये होगी कि आप इस फिल्म को हरगिज ना देखें और ना ही किसी को देखने का मशवरा दें। और इसीलिए मैंने ये जहर का कड़वा घूंट आपके लिए पिया ताकि आपको ये ना करना पड़े। समस्याएं क्या है इस फिल्म? समस्या नंबर 1, इस फिल्म में इस कदर वायलेंस और इस कदर अग्रेशन है कि पूरे तरीके से जब आप फिल्म देखकर लौटते हैं तो न सिर्फ कि आप एक खास समुदाय से नफरत करते हैं, उस समुदाय के जितने भी सिंबल्स हैं उनसे नफरत करते हैं, उनकी भाषा से, उनके रहन सहन से, उनके बिलीफ सिस्टम से, बल्कि आप किसी भी चीज से नफरत कर सकते हैं। आपके अंदर देखिए आप, इसमें भी है, इस पर्टिकुलर क्लिप में अभी मैडम कह क्या रही है, ऐसी ऐसी जो फिल्में हैं, ऐसी जो ये जो फिल्में दिखाया गया है इस वजह से जो कम्युनल हार्मनी है वो बिगड़ जाएगी। और शॉर्टकट में अगर बताओ तो मैडम का कहना यही है कि इतना सच क्यों दिखाया, और परिवार के साथ आप देख नहीं सकते ऐसी फिल्में, बहुत ज़्यादा मारकाट इसमें दिखाया गया है। बाकी की जो फिल्में थी, अभी आगे एक और क्लिप दिखाऊंगा, उसमें है मैडम कह रही है कि शाहरुख खान ने क्या काम किया, वाह 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 वाह, ऐसा काम और ऐसी फिल्म, और जो हिंदू मुस्लिम एकता का ये जो प्रतीक बनाया है शाहरुख खान ने, वाह वाह वाह। मैडम उनकी तारीफ करते थक नहीं रही और ये पे ये लोग ऐसे एक्सपोज हो जाते। प्रॉब्लम क्या है, अभी लोगों को समझ में आने लगा है कि यार ये लोग तो दूसरी जो मतलब अगर दूसरी कम्युनिटी या दूसरे लोगों के ऊपर अगर कुछ बताया गया है तो उस पर तो ये लोग बात नहीं करेंगे, उस पर कहेंगे वाह 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 क्या बना है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी सच अगर सामने आ जाए और रख दिया जाए तो ये लोग बिल बिलाने लगते हैं। और ये जो धुआं है अभी तो बहुत दूर दूर तक जाएगा और लोगों को समझ में आने लगा। और ये जो खास करके ये जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं, जिन जिन लोगों ने भी इस फिल्म का, धुरंधर का विरोध किया, और ये धुरंधर अभी कल का डेटा था शायद 60,000 टिकटें बुक हुई 1-1.5 घंटे में। अभी वीकेंड आ रहा है ना, इस वजह से 60,000 ऐसे इनकी वजह से तो वो तो आगे ही जाती रहेगी। और इन लोगों ने ज़्यादा, मतलब मेरे हिसाब से इन लोगों ने ज़्यादा कमा के दिया है धुरंधर को। ऐसे इन लोगों का रोना धोना चलता रहेगा और हम भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और ये जो एक्सपोज वाला आगे का एक वीडियो आप देख के जाइए। तब तक के लिए जय श्री राम। ये कामयाबी शाहरुख खान की सिर्फ एक फिल्म की कामयाबी नहीं है, उनकी ये कामयाबी बता रही है कि ये कामयाबी भारत के उन लोगों की है जो अभी भी एक ऐसे भारत के विचार में विश्वास रखते हैं जो भारत सबका है। मैं कहूंगी ये बॉलीवुड की वापसी है। मैं कहूंगी ये नफरत के ऊपर एक बहुत बड़ा, क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो तमाम भगवा ताकतें हैं, और मैं कहूंगी एक बहुत बड़ी हार है उन लोगों की जो बॉयकॉट गैंग जिसे हम कहते हैं। चल फट। और ये एक उसी तरह की फिल्म है जिसकी कामयाबी पहले से ही टूटते और बिखरता हुआ जो भारतीय समाज है उसमें एक आखिरी धक्का दे रही है। और सबसे बड़ी बात मेरी आपको सलाह ये होगी कि आप इस फिल्म को हरगिज ना देखें और ना ही किसी को देखने का मशवरा दें। ये कामयाबी शाहरुख खान की सिर्फ एक फिल्म की कामयाबी नहीं है, इस फिल्म को हरगिज ना देखें।